کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان رات بھر بھوکے شیروں کے ساتھ بند رہے اور صبح زندہ نکلے؟ کوئی ہتھیار نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی مدد نہیں، بس ایک انسان، اندھیری کھائی اور دہاڑتے درندے۔ لوگ باہر کھڑے رو رہے تھے، بادشاہ رات بھر سو نہیں پایا، درباری آپس میں کہہ رہے تھے اب تو یہ گیا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن صبح جب پتھر ہٹایا گیا تو جو نظارہ سامنے آیا اسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شیر اس کے پیروں میں بیٹھے تھے جیسے پالتو بلیاں ہوں، اور وہ انسان بالکل صاف، بالکل سرکشت، چہرے پر مسکان۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے، یہ کوئی من گڑھنت قصہ نہیں ہے، یہ حضرت دانیال کی سچی کہانی ہے۔ وہ نبی جنہوں نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ جب اللہ ساتھ ہو تو موت کی کھائی بھی ایک محفوظ جگہ بن جاتی ہے۔ آج ہم ان کی پوری داستان سنیں گے، شروع سے لے کر آخر تک، اور یقین مانیے جب یہ کہانی ختم ہوگی تو آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بابل، وہ شہر جہاں انسان خود کو خدا سمجھتا تھا، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ دجلہ اور فرات ندیوں کے بیچ ایک ایسی سلطنت تھی جس کا نام سن کر دنیا کانپ جاتی تھی۔ بابل، آج کے عراق کی زمین پر بسا یہ شہر اس زمانے میں دنیا کا سب سے طاقتور شہر تھا۔ اس کی دیواریں اتنی چوڑی تھیں کہ ان پر 2 رتھ ایک ساتھ دوڑ سکتے تھے۔ اس کے باغیچے اتنے خوبصورت تھے کہ انہیں دنیا کے 7 عجوبوں میں گنا جاتا تھا۔ اس کے محل اتنے اونچے تھے کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا جیسے آسمان کو چھو رہے ہوں۔ اور اس ساری شان اور شوکت کے بیچ ایک تخت پر بیٹھا تھا ایک بادشاہ جس کا نام تھا داریاوش۔ یہی وہ بادشاہ تھا جو خود کو دنیا کا مالک سمجھتا تھا، جس کے دربار میں ہزاروں صلاحکار تھے، ہزاروں سپاہی تھے، ہزاروں غلام تھے۔ لیکن اس پورے دربار میں ایک انسان ایسا تھا جو باقی سب سے الگ تھا، جس کے بارے میں خود بادشاہ کہتا تھا اس جیسا صلاحکار میرے پورے دربار میں کوئی نہیں۔ وہ انسان تھے حضرت دانیال۔ حضرت دانیال ایک خاص انسان۔ حضرت دانیال بنی اسرائیل کی نسل سے تھے، یعنی وہ اس قوم سے آئے تھے جس پر اللہ نے بہت سے نبی بھیجے۔ جب بابل کے بادشاہ نے بیت المقدس یعنی یروشلم پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل لے آیا تو ان میں کچھ ایسے نوجوان بھی تھے جو پڑھے لکھے، سمجھدار اور قابل تھے۔ حضرت دانیال انہی نوجوانوں میں سے ایک تھے، لیکن وہ صرف قابل نہیں تھے، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں ایسی خوبیاں دی تھیں جو کسی عام انسان کو نہیں ملتیں۔ پہلی خوبی، وہ سپنوں کی تعبیر بتا سکتے تھے۔ جب بادشاہ کوئی عجیب سپنا دیکھتا اور دربار کے سارے سمجھدار لوگ حیران رہ جاتے تو دانیال آتے اور پوری باریکی سے سمجھا دیتے کہ یہ سپنا کیا مطلب رکھتا ہے۔ دوسری خوبی، وہ چھپی ہوئی باتیں جان لیتے تھے۔ ایسی باتیں جو کسی کو پتہ نہیں ہوتی تھیں، جو پوشیدہ ہوتی تھیں، وہ دانیال کے سامنے کھل جاتی تھیں۔ تیسری خوبی، وہ ہر مشکل کا حل نکال دیتے تھے۔ جب دربار کے بڑے بڑے دماغ کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو دانیال ایک ہی پل میں راستہ نکال دیتے۔ لیکن ان سب خوبیوں سے بھی بڑی ان کی ایک خاصیت تھی، اور وہ خاصیت تھی ان کا ایمان، اللہ پر ان کا بھروسہ، ان کی عبادت جو کبھی نہیں رکی۔ وہ صبح اٹھتے، اللہ کو یاد کرتے، دوپہر آتی، اللہ کو یاد کرتے، شام ڈھلتی، اللہ کو یاد کرتے۔ دن میں 3 بار وہ اپنی کھڑکی کھولتے، بیت المقدس کی طرف منہ کرتے اور دونوں گھٹنے ٹیک کر اپنے رب کے سامنے جھک جاتے۔ یہی ان کی زندگی تھی، یہی ان کی پہچان تھی، اور یہی بات ان کے دشمنوں کی نیند اڑا رہی تھی۔ جلن کی آگ جب دوسرے کی کامیابی برداشت نہ ہو۔ دربار میں بہت سے صلاحکار تھے، پڑھے لکھے، تجربے کار، چالاک، لیکن ان سب کو ایک بات ہضم نہیں ہوتی تھی، اور وہ بات تھی دانیال کا خاص مقام۔ بادشاہ ہر ضروری فیصلے سے پہلے دانیال سے پوچھتا، بادشاہ ہر مشکل میں دانیال کی طرف دیکھتا۔ بادشاہ نے پورے بابل میں دانیال کو سب سے بھروسے مند صلاحکار کا درجہ دے رکھا تھا، اور یہی بات باقی صلاحکاروں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ جلن یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ انہوں نے دانیال کی زندگی میں کوئی کمی ڈھونڈنی شروع کی۔ ان کے کام میں غلطی نہیں ملی، ان کے حساب کتاب میں بے ایمانی نہیں ملی، ان کے برتاؤ میں کوئی خرابی نہیں ملی۔ دانیال کا کام بے داغ تھا، ان کی زندگی پاک تھی، ان کا کردار صاف تھا، کوئی کمی نہیں ملی۔ تو انہوں نے دوسری طرف سے سوچا۔ ایک دن کسی نے دیکھا دانیال اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہیں، منہ بیت المقدس کی طرف ہے، گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ بس یہیں سے سازش نے جنم لیا۔
एक सलाहकार ने बाकियों से कहा, उसके काम में नहीं, उसके दीन में फंसाओ। वो हर रोज अपने अल्लाह को पुकारता है, यही उसकी ताकत है। लेकिन इसी को हम उसका जुर्म बना देते हैं। और फिर शुरू हुई वो साजिश जो तारीख में हमेशा के लिए याद रह गई। वो साजिश जो 30 दिन में तैयार हुई। सारे सलाहकार मिलकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। उनके चेहरों पर वफादारी का नकाब था, लेकिन दिलों में जलती हुई आग थी। उन्होंने बादशाह के सामने एक सुझाव रखा। आए बादशाह, आप इस सल्तनत के मालिक हैं, आपकी ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजता है। हम चाहते हैं कि एक कानून बनाया जाए। बादशाह ने पूछा, कौन सा कानून? उन्होंने कहा, अगले 30 दिन तक पूरी सल्तनत में कोई भी इंसान किसी के भी आगे दुआ नहीं मांगेगा, न किसी अल्लाह के आगे, न किसी इंसान के आगे, सिर्फ आपके आगे। अगर कोई ये कानून तोड़े तो उसे शेरों की खाई में फेंक दिया जाए। बादशाह को ये बात बहुत पसंद आई। उसके घमंड ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोचा, पूरी दुनिया मुझे सजदा करे, पूरी सल्तनत मेरे आगे झुके, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसने कानून पर दस्तखत कर दिए। यहां एक बात जाननी जरूरी है। बाबुल में यह रिवाज था कि जब बादशाह किसी कानून पर दस्तखत कर दे तो वो बदला नहीं जा सकता, चाहे बादशाह खुद चाहे, चाहे कोई और चाहे। कानून पत्थर की लकीर बन गया। खबर पूरी सल्तनत में फैल गई। लोगों ने डर के मारे इबादत छोड़ दी। किसी ने कहा, 30 दिन की बात है, गुजर जाएगी। किसी ने कहा, अभी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन दानियाल के पास ये सोच नहीं थी। वो सजदा जो तारीख बन गया। खबर सुनते ही दानियाल अपने घर गए। उन्होंने अपनी खिड़की खोली, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह किया और दोनों घुटने टेककर अल्लाह के आगे झुक गए, जैसे हर रोज झुकते थे, जैसे हमेशा झुकते थे। कोई डर नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई रुकावट नहीं। वो जानते थे कि दुश्मन देख रहे हैं। वो जानते थे कि कानून टूट रहा है। वो जानते थे कि इस सजदे की कीमत क्या होगी। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अल्लाह का हुक्म किसी भी बादशाह के हुक्म से बड़ा है और अल्लाह के आगे झुकना कभी गलत नहीं हो सकता। ये सिर्फ नमाज नहीं थी, ये उनका ऐलान था, ये उनका फैसला था, ये उनका ईमान था। वो बिना एक लफ्ज बोले कह रहे थे, मैं सिर्फ एक रब के आगे झुकता हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सलाहकारों ने फौरन बादशाह को खबर दी, आए बादशाह, आपका सबसे खास सलाहकार दानियाल, वो आपके कानून की परवाह नहीं करता। वो दिन में 3 बार अपने रब को पुकारता है, आज भी, कल भी और परसों भी। बादशाह का दिल बैठ गया। उसे पता था कि ये सारी साजिश दानियाल के खिलाफ है। उसे पता था कि ये सलाहकार दानियाल से जलते हैं। उसे पता था कि दानियाल का कोई कसूर नहीं। उसने सूरज डूबने तक कोई रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन कानून अटल था। आखिर में भारी दिल से उसने हुक्म दिया, दानियाल को शेरों की खाई में डाल दो। वो रात जो हमेशा याद रहेगी। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर अंधेरा छा रहा था। दानियाल को बांधकर उस खाई के किनारे लाया गया जहां भूखे शेर रखे जाते थे। गहरी खाई, घना अंधेरा और नीचे से आती दहाड़ों की आवाजें। बादशाह वहां खड़ा था, आंखें भीगी हुई थीं। उसने दानियाल से कहा, तुम्हारा रब तुम्हें बचाए। दानियाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा रब काफी है। और फिर उन्हें खाई में फेंक दिया गया। ऊपर से भारी पत्थर रख दिया गया। दुनिया की नजर में यह आखिरी लम्हा था, लेकिन अल्लाह की नजर में यह उनके ईमान का सबसे रोशन लम्हा था। बादशाह अपने महल वापस गया। रात भर खाना नहीं खाया, नींद नहीं आई, कोई बाजा नहीं सुना, बस करवटें बदलता रहा। और खाई में दानियाल अंधेरे में खड़े थे। चारों तरफ शेरों की दहाड़ थी। उनकी आंखें चमक रही थीं। उनके पंजे जमीन पर थे। उनके जबड़े खुले थे। लेकिन दानियाल के होठों पर दुआ थी। अल्लाह का जिक्र था, अल्लाह पे यकीन था। और फिर अल्लाह ने अपना मामला फरमाया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने अपने फरिश्ते भेजे। उन शेरों के मुंह बंद कर दिए गए। वो दरिंदे जो लम्हों में इंसान को नोच डालते थे, वो जानवर जिनकी दहाड़ से जमीन कांपती थी, वो दानियाल के पैरों में बैठ गए जैसे पालतू बिल्लियां हों। रात गुजरती रही, शेर गरजते रहे, लेकिन दानियाल को नहीं छुआ। आसमान खामोश रहा, लेकिन अल्लाह जाग रहा था। फिर सुबह हुई, वो सुबह जो तारीख बन गई। बादशाह अंधेरे में ही उठ गया।
तेजी से खाई की तरफ दौड़ा। उसके कदम कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे। खाई के किनारे पहुंचा, ऊपर से आवाज लगाई, दर्द भरी, कांपती हुई आवाज। आए दानियाल, ऐ जिंदा अल्लाह के बंदे, क्या तेरे रब ने तुझे शेरों से बचा लिया? एक लम्हे की खामोशी, फिर नीचे से आवाज आई, सुकून भरी, इत्मीनान वाली। जिंदा। आए बादशाह, हमेशा जीते रहो। मेरे अल्लाह ने अपना फरिश्ता भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया क्योंकि मैं अल्लाह के सामने बेगुनाह हूं, और तेरे सामने भी है बादशाह, मैंने कोई बुराई नहीं की। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू, हैरानी के आंसू। उसने फौरन हुक्म दिया, दानियाल को बाहर निकालो। जब दानियाल ऊपर आए तो सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। उनके कपड़ों पर खून का एक धब्बा तक नहीं था, उनके बदन पर एक खरोंच नहीं थी, उनके बालों का एक बाल नहीं टूटा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाई में उतरे थे। लोग हक्के बक्के रह गए, सलाहकार डर गए, और बादशाह ने घुटने टेक दिए। इंसाफ का वो दिन। बादशाह ने फौरन 3 काम किए। पहला काम, पूरे बाबुल में ऐलान कर दिया, आज से कोई भी दानियाल के रब के खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। वो एक जिंदा अल्लाह है, वो हमेशा कायम रहता है, उसकी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी। उसने दानियाल को शेरों से बचा लिया। यही वो बादशाह था जो खुद को खुदा समझता था। आज उसने अल्लाह की बड़ाई का इकरार किया। दूसरा काम, दानियाल का मर्तबा और भी बुलंद कर दिया। तीसरा काम, वो सब सलाहकार जिन्होंने दानियाल के खिलाफ साजिश की थी, उन्हें और उनके घरवालों को उसी खाई में फेंक दिया गया, और शेरों ने उन्हें जमीन तक पहुंचने से पहले ही नोच डाला। ये था फर्क। एक अल्लाह का दोस्त था जो खाई में भी महफूज रहा, दूसरे हक के दुश्मन थे जिनके लिए खाई कब्र बन गई। अल्लाह देर करता है लेकिन इंसाफ कभी नहीं छोड़ता। हजरत दानियाल ने हमें क्या सिखाया? ये कहानी सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान की कहानी है जो कभी न कभी अपनी खाई में गया हो। वो खाई जहां नौकरी जा रही हो, वो खाई जहां रिश्ते खतरे में हों, वो खाई जहां दुनिया कह रही हो अब तो तुम खत्म हो गए। पहली सीख, ईमान समझौता नहीं करता। दानियाल ने जाना कि कानून टूटेगा, फिर भी सजदा किया, क्योंकि अल्लाह का हुक्म किसी भी बादशाह के हुक्म से बड़ा है। आज हम क्या करते हैं? नौकरी का डर हो तो नमाज छोड़ देते हैं, लोगों की बातें सुने तो हलाल और हराम की हद मिटा देते हैं। दानियाल ने सिखाया, जब अल्लाह का हुक्म सामने हो तो दुनिया की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। दूसरी सीख, जब अल्लाह साथ हो तो शेर भी बिल्ली बन जाते हैं। जो मसला हमें बहुत बड़ा लगता है, अल्लाह के लिए वो कुछ नहीं। जो खतरा हमें नाकाबिले बर्दाश्त लगता है, अल्लाह एक लम्हे में टाल सकता है। लेकिन ये तब होता है जब हम सच में अल्लाह पर भरोसा करें, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल की गहराई से। तीसरी सीख, खाई कब्र नहीं बनती लेकिन इम्तिहान जरूर बनती है। दानियाल की खाई उनकी कब्र नहीं बनी, उनकी शोहरत बनी। हजारों साल बाद भी दुनिया उनका नाम लेती है, क्योंकि जो अल्लाह के लिए खड़ा हो जाए, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। चौथी सीख, साजिश करने वाला खुद अपनी साजिश में फंस जाता है। सलाहकारों ने सोचा दानियाल को खत्म कर देंगे, लेकिन अल्लाह ने पलट दिया। वही खाई जो दानियाल के लिए बनाई गई थी, साजिशों के लिए कब्र बन गई। अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी का अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है। आज का सवाल, आपकी खाई कौन सी है? हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई खाई जरूर आती है। किसी की खाई गरीबी है, किसी की खाई बीमारी है, किसी की खाई तन्हाई है, किसी की खाई नाकामी है, किसी की खाई वो लोग हैं जो हर कदम पर रोकते हैं। लेकिन याद रखें, जो खाई अल्लाह के बंदे को निगलने आती है, अल्लाह उसे उस बंदे की इज्जत का जरिया बना देता है। शर्त सिर्फ एक है, वही शर्त जो दानियाल ने पूरी की, अल्लाह पर सच्चा यकीन, अल्लाह के आगे सच्चा सजदा, अल्लाह के हुक्म पर सच्ची पैरवी। बस इतना काफी है। आखिरी बात, हजरत दानियाल आज हम में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। उनका ईमान आज भी हमें सिखाता है। उनकी खाई आज भी हमें याद दिलाती है कि जब अल्लाह साथ हो तो कोई खाई इतनी गहरी नहीं कि अल्लाह का हाथ न पहुंच सके, कोई अंधेरा इतना घना नहीं कि अल्लाह का नूर न जा सके, कोई दुश्मन इतना ताकतवर नहीं कि अल्लाह की हिफाजत को तोड़ सके।
अल्लाह ने खाई में दानियाल को बचाया, वो आपको भी बचा सकता है। बस एक कदम उठाइए उसकी तरफ, वो 10 कदम आपकी तरफ आएगा और फिर आपकी खाई भी आपकी शान बन जाएगी। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जो डर के साथ जीते हैं और जो नेकी करते हैं। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें, शायद वो भी अपनी खाई में हो और ये कहानी उनके लिए अल्लाह का पैगाम बन जाए।